एक तो भूमि पूछ रही है कि सर व्हाई डिड यू प्रेफर टू गो अब्रॉड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द आईआईटीज थ्रू गेट। तो बात so first of all Welcome, tell sir. me, are we gonna do this in English or Hindi because I need to prepare myself. Sir, either of you preference, sir. तो भाई अभी मेरा भी मतलब माई प्लेजर टू कम हियर। मेरा भी मन था एक बार बताने सबको कि मेरे को अलग अलग लोग पूछते हैं कि सर हायर स्टडीज का कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं कहा यार एक बार जिसको भी डाउट्स आ रहे हैं सबको एक बार बिठा के कर दें साथ में क्लियर तो बेटर रहेगा। So, sir, I think we will take both of language. हम हिंदी इंग्लिश दोनों को रखेंगे because audience से interactive भी रखें. या Okay, sir. So, sir, we'll start with brief. Could you please introduce yourself towards the audience of ours and take yourself through your journey? Hello everyone, I'm Mohit. I'm your senior from 23 batch, and I've been doing my masters in Bournemouth University, UK for about 8 to 9 months now. Uh, I've always wanted to do masters after my bachelor's. I didn't want to go for a job, so I started preparing early on. And you need to you need to put in some effort as you're doing in your third years or your second year to prepare for it because uh, there are a lot of people applying and you need to have a certain edge in your resume. You'll need certain things. You'll need to write an SOP and you'll need letter of recommendation, which I got from my head of department. And they also sometimes they ask you for your resume, so you'll need to up your game there as well. And to be honest, there's not much barriers for higher education if you're going outside your country. Inside, you need to give GATE exams and all those. I gave them as well. And after that, it's up to the your peers that gave exam with you, how good they were to actually, that determines how good of a grade you'll get, how good of a college you'll go into. But जब इंटरनेशनल में जाने की बात आती है ना तो ये होता है कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट अस मोर इजीली बिकॉज ऑब्वियसली वी पे मोर देन द डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। तो मैंने अपना रिसर्च चालू कर दिया था पहले से ही सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से कि मतलब कौन से देश में जाना है, इज यूके बेटर, यूएस बेटर और कनाडा बेटर। तो आई होप तुम लोगों को इतना 4 साल तक रिसर्च नहीं करना पड़ेगा मेरी तरह आफ्टर दिस सेशन। To be honest, which country you want to go to depends on your personal preferences because there's not much difference between Canada, US, UK. एक बार कहीं का भी आ गए, जॉब मिल गई कहीं से भी, उसके बाद you can jump between the countries or you can just come back home if you want that. Uh, the only factor, to be honest, that it's money, it's financial issues. Just like everybody here that I've met, if you can take a student loan और तुम्हारे पेरेंट्स की जगह तुम पे करोगे उस लोन को अपने जॉब लगने के बाद. So you'll need to like decide really hard where you want to go. And my journey started and एक्चुअली स्टार्ट होती है पहले किसी कंसल्टेंट के पास जाके, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो तुम्हारे मतलब एक होता है ना ड्रीम यूनिवर्सिटी, वैसी नहीं है। तो कंसल्टेंट्स बहुत सारे हैं इंडिया में, दे यूजुअली चार्ज यू मनी, डोंट गो फॉर दोज कंसल्टेंट्स। फ्री के कंसल्टेंट्स हैं, दो बहुत बड़े नाम है, कैनम और आईडीपी। anyone who wanna go pursue studies abroad knows of IDP because they also need to give IELTS exam that is also conducted by IDP. तो कुछ requirements होती तो हैं, like you need at least 70% marks to get into any good college, वो भी है minimum requirement बाहर जाने की भी। But there's good thing कि 70% marks पे भी you get a scholarship. Some universities offer like 2 lakhs, 3 lakhs, up to 5 lakhs, you'll get scholarship and it's guaranteed scholarship. And the other thing you need is a good IELTS score. So for masters, it's 7 or 7.5 minimum, depending on which university you choose. For bachelors, it was 6, but for masters, it's high. Or
उसके बाद एक चीज होती है, कॉलेज की लिस्ट बना के रखो, कंट्रीज की लिस्ट बना के रखो। जैसे मैंने कनाडा और यूके दो जगह अप्लाई करा था। कनाडा में भी 3-4 कॉलेजेस में अप्लाई करा था, यूके में भी 3 कॉलेजेस में अप्लाई करा था। एंड बिकॉज यू नीड दोज ऑप्शंस। एंड विदाउट ऑप्शंस नहीं हो पाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि एक में ही अप्लाई करूंगा, हो गया सही है, नहीं हुआ सही है, तो फिर मोस्ट यूजुअली नहीं होता है वो, या फिर लेट हो जाता है। एंड एक और चीज मेरे को नोटिस में आई थी जब मैं अप्लाई कर रहा था कि कनाडा, यूएसए, इन सब में जाने के लिए एक टाइम तक डिग्री होनी चाहिए हाथ में, प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि वो मांगते हैं। और सितंबर इनटेक होता है, एक जैन इनटेक होता है, सितंबर इनटेक, दो इनटेक्स होते हैं बाहर। सितंबर इनटेक के लिए टाइम पे नहीं आएगी हमारी प्रोविजनल डिग्री। मेरी भी नहीं आई थी। वो तो किस्मत से जो 3 कॉलेजेस में मेरे को अप्लाई करना था, उनकी डेडलाइंस थोड़ी लेट थी, तो वहाँ पे हो गया था। बट जितना लेट अप्लाई करते हैं ना यहाँ पे, उतना चांस गिरता रहता है एडमिशन का। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। फिर उसके बाद जैन इनटेक में अप्लाई करा था यूके वालों में, तो उसमें ज़्यादा इजीली हो गया था मेरा। और ऑब्वियसली सबके दिमाग में था कि कॉलेज अच्छा होगा नहीं होगा, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कैसी होगी। तो इसके लिए मैंने यूज़ करे थे, एक तो टाइम्स रैंकिंग, उसका यूज़ करा था। और डिपार्टमेंट वाइज रैंकिंग देखनी होती है पहली बात तो, कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी की नहीं। कि मेरी यूनिवर्सिटी भी ऐसे आर्ट्स में टॉप 50 में आती है, बट कंप्यूटर साइंस में टॉप 50 में नहीं आती, थोड़ी नीचे आती है। तो इसमें इसका सबका एक बार दिमाग में रख के, once you have made a list of universities, this list of countries, then you're ready to go. Another thing I would like to say is, working in a club or NGO really helps, because when you're writing your SOP, they want to know what kind of person you are. If you are like, they don't want कि तुम बस किताबी कीड़ा हो, तो तुम्हें बस पढ़ाई ही आती है। उनको थोड़े मल्टीकल्चर, मतलब ऐसे लोग चाहिए जो एक्सप्लोर करते हो बाकी सब चीजें भी। उनको एक्स्ट्रा करिकुलर्स वाले भी चाहिए। दे नीड समवन हु वॉलंटियर्स। और ये यार भी, after you go to a consultant, they'll show you a list of colleges and list of courses that you can apply to. Most of those are tier 2, tier 3, so you need to filter through that. If you want to apply to tier 1 colleges, you will need to do it yourself. Because मेरे को याद है, मैं अमेरिका में अप्लाई करने के लिए गया था, and the consultant was asking for a 4 lakh fee, non refundable। और उसके बाद भी पक्का नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये इतना कुछ खास कॉलेज भी नहीं था, ये उसका था, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी का था। तो अगर मैं वही तगड़े कॉलेज में अप्लाई करूंगा, फिर और फीस लेंगे, वो भी नॉन रिफंडेबल। और टोटल कुछ 6-7 लाख का खर्चा आ रहा था। इतने में तो उतना नहीं हो पाता। 6-7 लाख इज बिग अमाउंट, क्योंकि अमेरिका जाके यू नीड टू स्टार्ट पेइंग 30 लाख 40 lakhs per year। As for the fees in the UK that I'm paying right now, it's I think it was around 12 lakh for the course। एंड उसके बाद रेंट का जो है वो सब जाता है आगे से। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे अराउंड 8 लाख 9 लाख होती है, जो हमारे मतलब 1-1.5 साल के कोर्स के लिए। यूजुअली 1 और 1.5 साल का ही कोर्स होता है यहाँ पे एमटेक का। तो सब कुछ मिला के यू नीड एटलीस्ट 20 lakhs in your account through student loans or means to show the office कि हमारे पास फंड हैं। अगर तुम ये फंड्स शो नहीं करोगे तो you won't get a visa। And sometimes they even like they like to verify if you actually know how to speak in English, if you actually have the funds that you're showing. They like to cross check, so they'll hold an interview for you। Most of the people that I'm studying with did not have an interview। मेरा भी नहीं था, but a couple of people did have that। तो अब जर्नी की बात करें तो मैं भी कॉलेज से निकला, and for like 6 months I was applying everywhere। कैनम के थ्रू था, कैनम का, they're all free। and उन्होंने मेरे को मतलब लिस्ट दी थी पूरी कंट्रीज की। मैंने ऑस्ट्रेलिया भी एक्सप्लोर करा था, कनाडा भी एक्सप्लोर करा था, यूके भी एक्सप्लोर करा था। मेरे को यहाँ के थोड़े बेटर ऑप्शन लगे थे, तो उस लिस्ट में से फिर मतलब मेरे को बेसिकली फिल्टर आउट ही करना था कि मेरे को ये कोर्स चाहिए। जैसे मैं उनको बोला था वो डेटा साइंस बेस्ड कोर्स दो, बिकॉज आई माय बैकग्राउंड वाज फ्रॉम डेटा साइंस इवन व्हाइल आई वाज डूइंग बैचलर।
So hopefully, like luckily, there were a lot of those courses. And UK में एक और चीज होती है, you get your acceptance letter within 2 weeks. तो 2 हफ्ते में मेरे को सारे रिजल्ट्स आ गए कि यहाँ पे एक्सेप्टेड हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ. कनाडा के 2-3 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, डिपेंड्स. तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि यूके के आगे मेरे को एक्सेप्टेंस लेटर्स, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, फीस दे दी, उसके बाद 3-4 महीने बाद मेरे को कनाडा वाली यूनिवर्सिटी का आ रहा है कि वी एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, प्लीज ज्वाइन योर यूनिवर्सिटी. तो बहुत लेट हो जाता है. और ज़्यादातर भाग दौड़ तुम्हारा कंसल्टेंट ही कराएगा. पासपोर्ट वाले के लिए तुम्हें इतने भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी. लाइक कनाडा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं. द एंटायर पंजाब एंड गुजरात इज गोइंग टू कनाडा. बट यूके के लिए इट्स नॉट दैट. द क्यूज आर नॉट लॉन्ग. इवन माय वीजा, आई थिंक आई गॉट माय वीजा इन अ वीक. 7 दिनों में मेरा वीजा आ गया था. सो दैट वाज नॉट मच आफ्टर दैट. To be honest, it's the main barrier is financial barrier, as I've said. And if you're concerned about the quality of education here, or the quality of how you're gonna, if you're concerned about how you're gonna survive so long away from your family, you don't need to be concerned about that. Studies बहुत अच्छी हैं, and as you know, your peers make you. तो मेरी क्लास में जितने भी हैं, they all want to study, they are serious about studying. जो नहीं होते वो आते ही नहीं है. और मतलब कंट्री एक्सप्लोर करने को मिलती है तुम्हें. यू गेट टू लर्न न्यू कल्चर्स, यू गेट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. इन अ वे मतलब एक अपने आउटसाइड द बॉक्स आते हो, एंड इट रियली वाइडन्स योर पर्सपेक्टिव. और अभी के लिए तो इतना ही है. बाकी किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो बताओ. And, sir, first I'll ask few questions to you, then we'll come to that doubt from the audience. Sure. Before that, sir, I would like to tell the audience that sir ने help us to help the child NGO के लिए 2 years से ज़्यादा के लिए उन्होंने volunteer किया. सी NGO अपना building अच्छी की सर ने. Sir, before moving to next question, I would like to ask you that what's your day like in UK? Like you have shifted to a new place, new atmosphere. So what's your daily routine and as a student of masters? डेली रूटीन तो यार यही है कि I have my classes 2 days, 3 days a week, and it's not even for the entire day. So I'll get 3 hours of classes on a Wednesday, 2 hours on a Thursday, and I have 1 hour of class on Friday. And after that, I usually have part time, and everybody here gets part time. There's no shame in that. मतलब जो अमीर से अमीर लोग हैं उनके भी बच्चे यहाँ पे पार्ट टाइम कर रहे हैं, because there's just too much time. Even after you're doing a project, even after you've done your studies, there's too much time, and you need to spend the time somehow. It's better to go to part time, learn, pick up some new skills, and make up some money in the process. After that, yeah, it's usually then I come home, get to my assignments, and सच्ची बताऊं तो सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे जितना मैंने देखा है बच्चों का सबका जाता है खाना बनाने में. 2-2 घंटे तक खाना बनाते रहते हैं किचन में. टू बी ऑनेस्ट, मुझसे नहीं हो पाता वो. आपने सीखा सर कुछ नए डिशेस ट्राई करना ऐसी बनाने के लिए, या आप आउटसोर्स करते हैं इसको? मैं जो भी खाता हूँ या तो फ्रीजर से निकलता है, कैन से. वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल. ओके सर. अनदर प्रॉब्लम दैट, क्योंकि इंडिया में फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन वर्क करती है एंड दैट इज समवॉट मिसिंग व्हेन यू आर स्टडीइंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो वी गेट दैट सर. सर, वी ऑल आर ईगर टू हियर अबाउट योर कॉलेज लाइफ. लाइक आप एबीएस में थे, सो योर ईयर ऑन ईयर एक्सपीरियंस एंड आप कॉलेज को यहाँ कैसे एक्सप्लोर किए, उसके बारे में. यार पहले तो आते ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आया मैं, तो फर्स्ट थिंग you'll notice when you come to UK is there's a lot of greenery. Lot of greenery. जैसे अपना सेंट्रल क्रॉसिंग रिपब्लिक वाला एरिया है जहाँ पे पेड़ लगे हैं हर जगह, वैसे just like that, but it's the entire country except for the major city like London. Everywhere is green. तो कैंपस में भी बहुत ग्रीनरी है. वहाँ पे गया मैं. इट वाज अ लार्ज कैंपस, एंड like there's a student union, they have their building of their own. If you don't want to go to the library, you can go to the student union building. They have cafes, and like
Like it was nice. I remember my first experience में जा रहा हूँ, वो हमें टूर दिला रहे थे वहाँ पे, उन्होंने वॉलंटियर्स लगा रखे थे जो उसमें पूरे कैंपस का टूर कराएंगे। और मैं तो होश उड़ गए, 3-3 कैंटीन कैसे हो रखी है यहाँ पे, वो भी खाना अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को, जैसे मैंने बोला कि फैमिली एक इंस्टीट्यूशन होती है वहाँ पे, यहाँ पे फैमिली वाले नहीं होते आसपास। तो मेरे केस में तो क्या था कि मेरे जान पहचान वाले लोग रह रहे हैं यूके में। मैं पंजाब साइड से हूँ, तो आधा पंजाब बाहर ही है, तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं आई। एवरी वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ आई गो आउट टू मीट माय फ्रेंड्स एंड दैट लाइक लेसन्स द पेन। बट जिन लोगों के नहीं है, वो घर को करते हैं बहुत मिस। अब एक बार दो बार दिन में बात कर ली, अब क्योंकि टाइम डिफरेंस भी है तो दिक्कत आती है। इनफैक्ट यूके में तो टाइम डिफरेंस कम है। इफ यू गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूएस और अदर कंट्रीज, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम डिफरेंस, 10 hours, 11 hours, so you can't really talk that much. And once your schedule gets busy, थोड़ी बहुत लोनलीनेस आ जाती है, बट you will have to bear with that. बस मैं तो ये बोलूंगा यार, आओ एक्सप्लोर करो, दोस्त बनाओ। भाई like the amount of people I've met when I came to after I came to university, it's a lot, and there's a lot of good people that I've met. यहाँ पे कैंपस वाइज आई थिंक, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग थी, दैट्स द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इट। 5 फ्लोर दे रखे हैं, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, खाना 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 खाओ। इफ यू वांट टू हैव लाइक a group meeting, you can do that. There's also lots of clubs and societies here, and they're really active. They're really active. I know, like I've joined like 6-7 societies here, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है with jobs and assignments. तो कोई किसी भी सोसाइटी का जब इवेंट खाली होता है, मतलब जब इवेंट शेड्यूल होता है, जब मेरा टाइम फ्री हो, I just go there and they make you feel welcomed, obviously. Everybody is really interactive with you. It's really fun. So also something about your college life back in India at ABS. वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका ये 4 साल, स्पेशली जब बीच में काफी कोविड भी आया था, तो वो कॉलेज लाइफ स्टार्ट इनिशियली आपकी इफेक्ट भी हुई होगी, तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था यहाँ पर? भाई आधी आधी कॉलेज लाइफ तो मेरी घर पे ही बीती है कोविड के कारण, तो दैट वाज समथिंग। नहीं, बट फर्स्ट ईयर वाज गुड। फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मैंने बिताए कॉलेज में। मतलब मेरा कॉलेज में आया ना, मेरे इधर आई हैव टू स्टे इन्वॉल्व विद समथिंग। मतलब पहले एचएससी के साथ इन्वॉल्व, बाद में अपने दूसरे क्लब के साथ इन्वॉल्व। मतलब ये नहीं है कि खाली नहीं बैठना है, कॉलेज में आए हो तो एटलीस्ट डू समथिंग दैट यू कैन लुक बैक ऑन, कि हाँ यार मैंने कॉलेज में ये करा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, एंड दैट मेक्स देम लाइक अ वन डायमेंशनल कैरेक्टर। अब सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो पाता। जैसे मैंने बोला, बाहर अप्लाई करना है तो वो तुम्हारा एसओपी मांगते हैं, उसमें वो देखते हैं कि क्या तुम वन डायमेंशनल कैरेक्टर हो या फिर मेरे में एक्चुअली कुछ पर्सनैलिटी है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने से पर्सनैलिटी नहीं आती। यू कैन हैव योर पर्सनैलिटी, बट यू नीड समथिंग टू शो दैट यू हैव अ पर्सनैलिटी। चेस क्लब ज्वाइन कर लो, कुछ भी ज्वाइन कर लो, बट डू समथिंग। तो वही था वहाँ पे। एबीएस में तो यार बहुत मजे करे थे। अब तो खैर वहाँ पे जो कैफेज भी सारे बदल गए हैं। जब मैं डिग्री लेने आया था, मैं देख रहा था टीमेंस होता था हमारे टाइम पे, वो भी चला गया, सब चला गया। बट या इट वाज फन, इट वाज एन एक्सपीरियंस। So is there anything particular you miss about college? T-Mans have also एनीथिंग added you. T-Mans is back. T-Mans is back at second floor. तो वो फिर से? आ गया है. Yes sir. वो अंकल नहीं जा रहे लग रहा है छोड़ के कॉलेज को इतनी जल्दी फिर। नहीं वो नहीं जा रहे. आई थिंक I don't really miss anything about the college itself. I miss the people that I met at college. Like, जो दोस्त थे मेरे कॉलेज वाले, they are still one of the closest friends I have. अभी भी उनसे बात होती है मेरी हफ्ते में 1-2 बार। बट यहाँ पे वैसा बॉन्ड नहीं बन पा रहा किसी के साथ। एंड ऊपर से 16 महीने के लिए हैं सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो उतना बंदा खुद से ट्राई भी नहीं करता कि लेट्स फॉर 16 मंथ कितना यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा। तो वो है अभी। आई एम इन माय 10th month of study right now। और अब जाके मेरे को थोड़े ढंग के दोस्त मिले, और मैंने पूरी इंडियन पॉपुलेशन के थ्रू साइकिल कर लिया, अब जाके ढंग के दोस्त मिले मेरे को, जिनसे एक्चुअली मतलब
होता है ना थोड़ा सा कि वाइब मैच होती है, जैसे जो बोलते हैं यस सर। वो हो रही है कि मतलब हाँ उनका स्वभाव मेरे स्वभाव जैसा है, तो वो सब। या बट पीपल और बाकी यार उतना सच्ची बताऊं तो मिस नहीं होता, बिकॉज यू स्टे ऑक्यूपाइड हियर। इफ यू कीप योरसेल्फ बिजी यू आर नॉट गोना मिस लाइक होम और कॉलेज। Sir, a good portion of today's audience consists of juniors from first and second year, who may not completely understand the depth and the spectrum of data science. Even though a college में एक specialized branch आ चुकी है CSE DS, but still लोग ऐसे हैं जो उसमें हैं, but they don't understand that data science thing, that data science term. They think it is something very complex, क्योंकि इसकी terminologies थोड़ी सी complex हो जाती हैं कभी-कभी. So if you could please explain our audience in layman's language, data science and its roadmap, how you यार chose it. डेटा साइंस से डरने की जरूरत नहीं है यार, मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, इवन आई गेट स्केयर्ड ऑफ सम टर्मिनोलॉजी समटाइम्स, प्रोफेसर्स बोलते हैं तो। बट यार मेन यही है कि मैंने तो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, आई थिंक थर्ड ईयर था उसमें, थर्ड या फर्स्ट, थर्ड ईयर ही था। उसमें हमारे कॉलेज वाले कराते हैं कोर्स अलग से स्पेशल, जिसमें या तो तुम्हें डेटा साइंस चूज करना होता है या फिर मर्न स्टैक चूज करना होता है। और मैंने उस टाइम डेटा साइंस करा था, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। आफ्टर दैट मेरे को मेरे इलेक्ट्रिकल वाले फ्रेंड्स थे एक्चुअली, जिनको मुझसे ज्यादा डेटा साइंस आती थी, तो दे गाइडेड मी। तो यार वही यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के थ्रू करा मैंने सारा। अब एक कोड विद हैरी जिनका सबका चलता है वैसे ही, और एक फ्री डेटा कैंप .org वेबसाइट है, इसके थ्रू भी करा था मैंने। बट यही था कि पहले तो पाइथन आनी चाहिए, उसके बाद बेसिक चीजें जैसे होती है कि मतलब डेटा सेट तुमने कैसे किस तरीके से लगाया है अपने उसमें प्रोग्राम में, और उसको क्लीन करना कि नल वैल्यूज निकालनी, डुप्लीकेट्स निकालने। ये सब सुनने में पहले डरावना लगता है, करने बैठो 2 लाइन ऑफ कोड लगते हैं और सब हो जाता है। बट दैट मेक्स अप मोस्ट ऑफ इट। डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। उसके आगे तो उसके आगे फिर एआई लगता है उसमें, so you need to familiarize yourself with different AI terms, कि मतलब डर ना लगे सुन के। मेरे को याद है कि हमारी क्लास में एक प्रोफेसर ने बोला कि न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू करो ये वाला, तो बच्चे डर गए, न्यूरल नेटवर्क्स तो आता ही नहीं, ये तो आता ही नहीं। तो डेटा साइंस वैसे तो एक जनरल सीएस में लगता है, बट डेटा साइंस में ये है कि मतलब यू विल नीड टू कीप लर्निंग न्यू स्टफ, सो बेटर बेसिक से फेमिलियराइज कर लो खुद को। और पाइथन हो गया, प्री प्रोसेसिंग हो गई, यहाँ बस एआई एआई सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मतलब इसके एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि अगर न्यूरल नेटवर्क्स की बात हो रही है तो वो कैसे हो रहे हैं, या नॉर्मल क्लस्टरिंग की बात हो रही है तो वो कैसे हो रहा है। तो जो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले उनको मैं सजेस्ट करूंगा, डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है तो क्लासेस सीरियसली लेना, वो जो एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं कॉलेज वाले, बिकॉज दैट्स रियली वर्थ इट। बट या अगर मैं बताने को आ जाऊँ तब तो इसमें फिर कोई है ही नहीं उसमें, तो मैं उससे चला जाऊँ, रैबिट होल है पूरा ये, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी नई नई चीजें आ रही हैं। Yes, sir. अच्छा So, sir, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। yes, रिसर्च sir. पेपर्स पढ़ने से ना खुद को फेमिलियर, मतलब यूज टू हो जाओ, कि हम तो एबीएस में या इंडिया में कहीं पे भी मेरे को बच्चे दिखते हैं रिसर्च पेपर पढ़ते हुए। इनफैक्ट मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़े हैं, मैंने भी इंडिया में कम ही पढ़े थे, बट यहाँ पे आके यहाँ पे आके तुम अगर एमएससी कर रहे हो, मैं एमएससी कर रहा हूँ, एमटेक नहीं होता ना, तो एमएससी कर रहे हो तो इट्स रिसर्च बेस्ड, मतलब जॉब तो लगनी है इसके बाद, बट रिसर्च थोड़ा फोकस में रहता है। मेरे को एग्जाम्स की जगह असाइनमेंट कराते हैं, वो भी सारी रिसर्च बेस्ड होती है, तो मेरे को 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। गेट यूज टू दैट, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर। So I've seen काफी sorry, pardon, काफी सीनियर्स को देखा है मैंने कॉलेज में, they have started writing those research papers जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के सीनियर्स हैं, आई थिंक। एंड मुझे लग रहा है काफी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपकी जितनी बातें आपने बोली हैं अभी सबके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, बिकॉज दे आर काफी एंथुसियास्ट हैं आज। सर, व्हाट इज दैट वन स्किल और एक्सपीरियंस जो आपको जैसे एबीएस से मिला, लाइक डेटा साइंस ट्रेनिंग था, तो अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स जो आपको आज करंट लाइफ में जो आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हो उसमें हेल्प कर रहा है? यार फिर डेटा साइंस था, ऊपर से जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा एबीएस में वो मैटर करता है, क्योंकि
मेरा इंटरव्यू होता है कहीं पे भी, जॉब के रिगार्डिंग या एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो जब एक होता है ना कि पर्सनल टेक्निकल स्किल्स आर गुड, उसके साथ तुम्हें थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी भी दिखानी पड़ती है इस इंटरव्यू में। तो एबीएस में आके मेरी वो डेवलप हुई थी अच्छे से, तो उसमें मेरे को बड़ी हेल्प मिलती है। कभी कभी इंटरव्यू के राउंड स्किप हो जाते हैं, दैट्स गुड। ऊपर से आई वुड से कि यार वहाँ पे आके सबसे अच्छी स्किल तो मेरे को ये मिली कि 2 दिन में कैसे खत्म करते हैं असाइनमेंट। Yes, sir. Still true for नहीं most नहीं of us. नहीं, जोक्स असाइड, मतलब एबीएस में वो नई नई चीजें कराते रहते हैं ना टीचर्स, नए नए कोर्स डालते रहते हैं, तो यू गेट यूज टू लर्निंग न्यू स्टफ। तो वो अच्छी चीज थी, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बस एक लैंग्वेज सीखी, उसका कुछ नहीं सीखा, या फिर बहुत ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के भी नहीं है, तो कीप अप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एबीएस में स्पून फीड होती है इन्फॉर्मेशन, टीचर तुम्हें एक्चुअली पढ़ाना चाह रहा है कि तुम पढ़ो, तुम नहीं आ रहे हो तो तुम्हें बुलाएंगे कॉल करके। यहाँ पे टीचर्स को फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ ना आओ, समझ आ रहा है नहीं समझ नहीं आ रहा तो पूछो, नहीं पूछोगे तो वो प्रोफेसर तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, चले जाएंगे आगे, और तुम अपना देखते जाओगे हो क्या गया। तो वो एक डिफरेंस है यहाँ पे, कि मतलब एबीएस में टीचर्स एक्चुअली केयर करते थे। केयर यहाँ के भी करते हैं, बट एबीएस से ज्यादा था कि मतलब कि बच्चे को अच्छे से कराना है। बहुत केयर करते हैं सर, हमने देखा है, फील किया है इस चीज को। सर अनदर थिंग दैट आप, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हैं इस फील्ड में, आपके साथ काफी कंपटीशन भी होगा, क्योंकि सम इस हम्म। अराउंड काफी लोग होंगे। एनीथिंग दैट यू विश कि आपको पहले से पता होती जर्नी स्टार्ट करने से पहले, तो वो आपको एज दे सकती थी इस फील्ड में? या आई वुड से मास्टर से पहले 1-2 साल का जॉब एक्सपीरियंस ले लो। यहाँ पे जो मेरे कंपटीशन में अभी लोग हैं, मिनिमम 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आए हैं, और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आए हैं, मतलब दे आर वेल वेल इन इंडस्ट्रीज, तो उसके बाद आके मास्टर्स कर रहे हैं। तो कंपटीशन मैं देख रहा हूँ तो टफ है, स्पेशली जो डोमेस्टिक, जो यहाँ के हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेके, मतलब हद से ज्यादा सीरियस। वो बोलते हैं कि 2 रिसर्च पेपर पढ़ो, अगले दिन वो आके बोलते हैं कि हमने तो 15 पढ़ लिए, ये हो गया वो हो गया। तो मतलब एकदम से लगता है कि इतना तो पढ़ते ही नहीं था कोई। बट या तो कंपटीशन टफ तो है, एटलीस्ट इंटर्नशिप एक उठा लो। अगर बाकी जॉब वॉब का नहीं है मन, तो इंटर्नशिप एक उठा लो, तो उससे भी रहता है। मैंने ट्रेनिंग करी थी, इंटर्नशिप भी नहीं करी थी, मैंने ट्रेनिंग करी थी एक एक कंपनी में, तो वो काम आ रही है मेरे। यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह मेरे को समझ आ जा रहे हैं, वरना कंपटीशन कम है बट टफ है। सर इंडिया में जनरली देखा गया कि डेटा साइंस के फ्रेशर्स को इंटर्नशिप्स और जॉब्स मिलना थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स हम्म। मास्टर्स या थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एनालिसिस की फील्ड को फॉलो करना सही है, मतलब फॉर इनिशियल जॉब या अंदर एंटर करने के लिए इंडस्ट्री, डेटा एनालिस्ट के तौर पे, एंड देन यार मेरा तो साइमल्टेनियसली सच लर्निंग बताऊं, स्किल्स। मेरा तो सेकेंड ईयर से ही मन था कि मेरे को तो डेटा एनालिस्ट की फील्ड में ही जाना है। बट अपना जो सीवी है, अपना जो पोर्टफोलियो, थोड़ा थोड़ा सा वास्ट रखो, थोड़ा सा एआईएमएल में भी फोकस डालो, ताकि अगर डेटा एनालिस्ट की नहीं मिल रही है तो एआईएमएल की साइड जाके कुछ कर कर पाओ, या फिर अगर अगर जैसे तुमने बेसिक्स पे काम करा है, पाइथन स्ट्रॉन्ग कर ली है, तो तुम कुछ भी जॉब मिल जाएगा पाइथन में। वैसे पाइथन में जॉब्स कम होते हैं, यूजुअली जावा में ज्यादा होते हैं जब हमारे कॉलेज में आते हैं एबीएस में, बट मिल जाएगा पाइथन में, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। और बस यार यही है, क्लाउड भी काम में आता है, यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, और क्योंकि क्लाउड का काम आता है डेटा एनालिसिस में, तो वो भी काम में आएगा, उसकी भी जॉब में है, और जॉब सिक्योरिटी भी बहुत है उसमें। सो दैट्स हाउ यू कैन लाइक अपने सीवी में अलग अलग स्किल्स डाल सकते हो, ताकि जॉब्स में हेल्प हो थोड़ी। इन शॉर्ट मतलब थोड़ा सा क्लाउड भी आना चाहिए, थोड़ा सा एआई एंड एमएल भी आना चाहिए, ताकि आपका रिज्यूमे बेसिक्स बिल्ड स्ट्रांग बेसिक्स रहे। एटलीस्ट। ऐसा। Sir, okay, coming to some funny questions for you. What is this one famous misconception people have about this field? अगर आपको, if you can. वन फेमस मिसकंसेप्शन, ये चीज मैंने नहीं बोली है, ये मेरे जो नॉन टेक वाले क्लासमेट्स हैं यहाँ पे, उन्होंने बोली है। वो आते हैं बोलते हैं कि मतलब बहुत हार्ड है, वो पढ़ते भी नहीं है,
ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ाई का एफर्ट डाला है, नहीं, बहुत हार्ड है। वो टर्म्स देख के डर जाते हैं। उनको किसी ने एक बार डेटा रैंगलिंग बोल दिया, उसी में डर गए। फिर मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करा, नहीं इसका ये मतलब होता है। तो एक बार ट्राई करो, हार्ड कुछ नहीं है यार। एक बार हार्ड क्या है, अगर 6th क्लास में रहते तो 9th क्लास का सिलेबस हार्ड ही लगता था। तो 9th में आया यस तो सर। इजी हो गया ना। एक बार पढ़ाई चालू करो, हो जाएगा। और ऊपर से एक मैंने ये सुना है कि जैसे तुमने बोला कि जॉब्स कम मिलते हैं, भाई पहले तो कॉलेज में किसी ने नहीं बताया था मेरे को ये कि जॉब्स कम मिलते हैं। आई वाज लाइक देखा जाएगा। बट या जॉब्स हाई पेइंग है, बट है कम डेटा एनालिसिस में इंडिया में, और बाहर भी थोड़े कम ही है बाकी फील्ड से अगर कंपेयर करा जाए तो। इसीलिए अपना एआई का भी स्ट्रांग रखो फाउंडेशन, क्लाउड का भी थोड़ा बहुत पढ़ लो। जैसे आपने बोला आपका फ्रेंड्स ग्रुप काफी बढ़िया था कॉलेज में, सो वो उसके बारे में कुछ बता सकें, वो कैसे कंट्रीब्यूट किया है आपके प्रोग्रेस में अब तक? फ्रेंड्स तो मेरे, सच्ची बताऊं तो जबरदस्ती पढ़ाते थे मेरे को। क्योंकि मैं तो उतना उतना हार्ड वर्किंग नहीं हूँ जितने मेरे बाकी जो पीयर्स थे मेरे। तो एग्जाम के टाइम मेरे को कह रहे हैं कि भाई सीओडी मत खेल, पढ़ाई कर ले, ये कर ले, तो फेल्ट गुड टू हैव समवन। और भाई कॉलेज में भी मतलब कोई भी मेरे डिसीजन में लेता था तो अलग से सपोर्ट आता था कि करो। मैंने एक दिन ऐसे ही उठ के बोल दिया यार सोसाइटी खोलनी है कॉलेज में, कहते ठीक है खोल लेते हैं। हो गए, कुछ नहीं पूछा, कुछ ऐसे नहीं, ठीक है चलो खत्म। और यार और ऊपर से यू आर हु यू हैंग आउट विद, तो बेसिकली शेप करी मेरी पर्सनैलिटी, दे बिल्ड द मैन दैट आई एम राइट नाउ। सर आप कौन कौन से क्लब में थे कॉलेज में? एंड आई आल्सो हर्ड आपने डॉक्यूमेंटेशंस में भी हेल्प की है काफी, त्रिशूल कम्युनिटी की, एंड आपने अपने क्लब की भी सारी चीजें की, तो आप जूनियर से भी काफी कनेक्टेड रहे हैं जितना मुझे पता चला अपने सीनियर्स के थ्रू। उसके अराउंड आप कुछ बता सकें ऑडियंस को? यार पहले 3 साल, पहले 2 साल एक्चुअली, पहले 2 साल तो सिर्फ मैं एचएचसी में ही था। क्योंकि बाकी क्लब्स में इंटरेस्ट नहीं था मेरा। एक्चुअली मेरे को लिटरेरी सोसाइटी में जाना था मिनर्वा में, बट उनका एंट्रेंस जो था कि जो टेस्ट वगैरह वो उसके टाइम को मैंने मिस कर दिया था। मैंने बोला चलो कोई ना, एचएचसी से कर लेंगे। तो था उसमें ज्यादा इन्वॉल्व था मैं पहले 1 साल पूरा के, मतलब अपनी जो 2 घंटे होते हैं दिन के वो तो करना ही है, एक्स्ट्रा भी जाना है 1-2 बार। सीनियर से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बाकी इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। 3rd ईयर में अपनी खुद की सोसाइटी चालू करी थी, मैं उसका मेंबर था। फिर इग्नाइट, स्टॉप इग्नाइटर्स। उसके अलावा कोई सोसाइटी मैंने ज्वाइन नहीं करी उतनी। बट इन दो से मतलब काफी एक्सपीरियंस मिला, काफी सीखने को मिला। जूनियर से बहुत इंटरेक्शन मिला मेरा, सीनियर से बड़ा। तो मतलब इंटरेक्ट करता रहना चाहिए लोगों से। कॉलेज इज नॉट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं है कि अकेले आए हो अकेले चले जाना है। लोगों से मिलो, इट्स ऑल अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, मेकिंग कनेक्शंस। बाहर आके भी ये रखना है दिमाग में कि मतलब शर्माना नहीं है कि नहीं इंग्लिश बोलने में नहीं आ रही तो मैं बात नहीं करूंगा, या फिर ऐसे वैसे। जस्ट टॉक टू पीपल, गेट टू नो, गेट टू नो एनीवन दैट, टू बी ऑनेस्ट। कॉलेज में बहुत ही बेशर्म होके बात करता था मैं सबसे कि मतलब बंदे का मन नहीं है तब भी बात करूंगा। तो दैट्स हाउ आई बिल्ट माय सेल्फ। आई थिंक सर वो बहुत हेल्प भी करता है बीइंग बेशरम थोड़ा सा, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर पाते हो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा। आई थिंक सर ऑन लाइटर नोट, इफ आई कुड आस्क यू, इफ यू कुड प्रेडिक्ट योर फ्यूचर विथ मशीन लर्निंग, व्हाट वुड यू वांट इट टू टेल यू? ऑब्वियस आंसर तो यही है यार कि 5-6 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, कितनी सैलरी होगी। सर सबके मन में होगा सर। और क्योंकि मैं तो ये भी प्रेडिक्ट करना चाहूंगा कि मैं 5-6 साल में कौन सी जगह पे होऊंगा, क्योंकि मैं कहीं एक जगह टिकता हूँ नहीं। मैं आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू लाइक मूव अराउंड। मैं वो भी प्रेडिक्ट करना चाहूंगा भाई 5-6 साल बाद यहीं पे हूँ कि कहीं और हूँ। एंड सर आप जैसे प्रोग्रामिंग में सेकेंड ईयर से एंटर कर चुके थे, तो कई बार हम लोग ऐसा होता है स्पेशली पाइथन में, या जब मशीन लर्निंग के मॉडल्स रन कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जुपिटर नोटबुक पे ट्राई कर रहे हैं बट एरर आ रहा है, एरर आ जा रहा है यार। जो डिजायर्ड एक्यूरेसी मॉडल्स की, या फिर छोटे मोटे जो भी हम डेटा हम्म। प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग आपने मुझे बताया, क्लीनिंग, उसमें वो नल वैल्यूज बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं।
तो व्हाट इज यू थिंक आप अभी करते या पहले भी क्या करते थे जब कोई बार बार क्योंकि हम भी एज ए स्टूडेंट आजकल बहुत ट्राई करते हैं सम कॉन्टेस्ट 1 घंटे बैठे हैं वी आर ट्राइंग कुछ टेस्ट केस पास हुए समटाइम्स रन टाइम एरर आ गया कभी कंपाइल टाइम एरर आ गया तो उस टाइम आपका क्या गो टू एक्टिविटी होता है व्हाट इज गो टू ब्रेक एक्टिविटी आप आराम करना पसंद करते हैं थोड़ा रुक के डू समथिंग एल्स टू बी ऑनेस्ट पहले तो मैं 5-6 मिनट अपने लैपटॉप चलाता हूँ क्यों नहीं कर रहा है गूगल को सुनाता हूँ थोड़ी बहुत क्योंकि मैं इसमें गूगल को लैब में काम करता हूँ बट उसके बाद मैंने मतलब अगर नहीं हो पा रहा है बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो 3 घंटे 4 घंटे कोड रन नहीं हो रहा है इट्स बेस्ट टू जस्ट क्लोज इट फॉर द मोमेंट 10-15 मिनट की वॉक लो थोड़ी चाय कॉफी पियो जो भी तुम्हें पसंद हो फिर वापस आके देखो उसको एक बार लगे रहने से लोग बोलते हैं लगे रहो अगर 3 घंटे से नहीं हो रहा 2.5 घंटे से नहीं हो रहा तो उसके बाद तुम्हारे दिमाग में प्रेशर बिल्डअप होने लग पड़ता है तो तुम्हारा थोड़ा जजमेंट क्लाउडी हो जाता है तो ऑब्वियसली 2.5-3 घंटे तक नहीं हुआ तो आगे और दिक्कत आएगी जस्ट गो फॉर 15 मिनट वॉक कम बैक एंड दैट यूजुअली हेल्प्स मी वरना सर मूविंग अहेड अगर इतना भी नहीं इतने में दिक्कत आ रही है तो फिर तो चैट जीपीटी है ही आजकल तो चल रहा है यस सर सबके लिए आप लोग स्टैक ओवरफ्लो के टाइम से आज चैट जीपीटी सब वहीं पे हैं अपने हाँ अरे कोड चैट चेक करने के जीपीटी लिए से पहले स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन करते मतलब देखते थे गूगल करते थे लिखते थे स्टैक ओवरफ्लो ताकि स्टैक ओवरफ्लो वाला आंसर आए यस सर अब तो काफी कुछ इसमें डाइवर्सिफाई हो चुका है सर मूविंग अहेड रैपिड फायर सेगमेंट है फॉर यू आई विल गिव यू हम्म, 2 ऑप्शंस एंड उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा सो आर यू रेडी सर हाँ, बताओ ओके सर फर्स्ट इज योर इंडियन चाय और फैंसी लाटेस व्हाट डू यू प्रेफर इंडियन चाय कुल्हड़ वाली ये सर व्हाट यस सर instant 2 minute Maggie noodle or cooking an entire meal इंस्टेंट 2 मिनट मैगी नूडल yes sir how do you describe yourself whether you are night owl or an early bird आंसर के लिए नाइट आउल बोल देता हूँ बट जैसा मेरा स्लीप स्केड्यूल है मैं दोनों ही हूँ okay sir बहुत आप टफली मैनेज कर रहे हैं इसको मूविंग अहेड व्हाट डू यू प्रेफर इन डेटा साइंस मैथ्स ज्यादा या प्रोग्रामिंग ज्यादा प्रोग्रामिंग ज्यादा ओके एंड व्हाट इज योर गो टू मतलब आप सेमेस्टर में कैसे पढ़ते हैं फुल सेमेस्टर स्टडी और द लास्ट नाइट मैराथन्स अब तो फुल सेमेस्टर स्टडीज है एबीएस में लास्ट नाइट मैराथन्स एंड योर बेंच फर्स्ट बेंचर थे आप या लास्ट बेंचर लास्ट बेंच है बेंचर सेम सर आई एम आल्सो दैट सर वेदर यू प्रेफर स्टडिंग फ्रॉम बुक्स क्योंकि आप रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं काफी बुक्स भी आती होंगी सर हम्म। या ऑनलाइन रिसोर्सेज पे पीडीएफ फॉर्म में पेपर्स पढ़ना प्रेफर करते हैं मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ यार बुक्स में नींद आती है टू बी ऑनेस्ट मेरे को यस सर एंड लास्ट फ्रेंड्स फ्रॉम एबीएस और फ्रेंड्स फ्रॉम बॉर्नमouth वो फ्रेंड्स फ्रॉम एबीएस यार ऑल द वे फ्रेंड्स फ्रॉम एबीएस ओके सर बिफोर वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट सर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू आर यू लुकिंग टू कंटिन्यू करियर अब्रॉड और बैक इन इंडिया क्योंकि आप जैसे बताया आपने 10 मंथ्स कंप्लीट भी कर लिया है इस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर्स में एंड लास्ट 6 मंथ्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं सो डू यू सी प्रोग्रेस कम इंडिया में है एंड यू विल कम बैक और वेदर यू विल डूइंग द जॉब अब्रॉड ओनली यार मैं अभी अपने ऑप्शंस ओपन रखने की सोच रहा हूँ मैं हर जगह अप्लाई करूंगा इंडिया से अच्छा ऑफर आता है सो ऑब्वियसली आई विल बैक इन इंडिया वरना मैं अभी स्पेसिफिकली यूके और ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने का देख रहा हूँ जॉब्स का तो क्योंकि अपने ऑप्शंस हमेशा ओपन रखने चाहिए कभी खुद को एक जगह पे लिमिट नहीं करना जब तो ऑनलाइन आ गया सारा तो क्यों ही एक जगह जॉब देखनी है अभी अर्ली करियर है मेरा ऑब्वियसली मैं पैकेज के पीछे भाग रहा हूँ होता है तो जहाँ से अच्छा होगा आई विल गो देयर उसके बाद का शॉर्ट टर्म गोल तो मेरा यही है उसके आगे मेरे को रहना कहाँ पे है वो सब बाद में डिसाइड कर लेंगे देखते हैं एंड सर मतलब आप इतना तो समझ गए होंगे कि मतलब ऑफिस वर्क ज्यादा फेमस हो रहा है कि रिमोट वर्क क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस फील्ड में बहुत सारा काम ऑफलाइन में रिमोट वर्क भी हो सकता है बट हम्म। प्रेजेंटेशंस हैं योर एनालिसिस हैव टू प्रेजेंट इट तो उसके लिए ऑफलाइन प्रेजेंस भी काफी लोग पसंद करते हैं तो व्हाट इज योर प्रेफरेंस वर्क फ्रॉम होम और दैट ऑफिस आई थिंक इट डिपेंड्स अगर तुम अपने ही बर्थ स्टेट में हो तुम्हारे आसपास लोग हैं तुम्हारे जान पहचान वाले यू विल प्रेफर वर्क फ्रॉम होम
इफ यू आर इन अ न्यू प्लेस तो वर्क फ्रॉम होम काटने को भागता है फिर, क्योंकि कोई बात करने को नहीं है, तुम्हारे ऑब्वियसली नई जगह गए हो तो दोस्त भी नहीं है। अगर मेरे को यूके में वर्क फ्रॉम होम मिला तो ठीक है, मैं पहले 2-3 महीने खुश होऊंगा, बाद में मेरे को लगेगा कि क्या ही करूं, ऑफिस वाले दोस्त भी नहीं बने, कॉलेज वाले भी चले गए, अब बैठो घर पे। तो आई वुड प्रेफर कि ऑफिस वर्क मिल जाए। सर आपने स्टार्ट करते बोला था कि आपको काफी डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग, आपके जूनियर्स काफी कनेक्ट करके आपसे पूछते हैं, तो व्हाट आर, आप एक कोई फेमस क्वेश्चन उठा के उसका आंसर कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है आपसे। That's a tough one यार, इतना से फेमस यूजुअली यही होता है कि आपने अप्लाई कैसे किया है या आपको पता कैसे चला इस कॉलेज का। तो अप्लाई करने का तो वही है, जैसे मैंने बोला, अपने अगर खुद से कर रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट है, अपना एक एसओपी बना के रखो। और हर कॉलेज के लिए एसओपी अलग होना चाहिए, हर कॉलेज का अलग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए कि मैं आपके कॉलेज के लिए क्यों बेटर हूँ, आपके कॉलेज में ऐसी क्या फैसिलिटीज हैं जो मेरे को चाहिए, बेसिकली वो बताना होता है। तो उसको कस्टमाइज करना होता है हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मेरे डिपार्टमेंट में तो क्या था, मैं गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए बोलते, लिख के लाओ, साइन मार देंगे। तो वो हो गया तो ऑल गुड, नहीं हुआ तो कोई ऐसा प्रोफेसर पकड़ना जो तुम्हें जानता हो अच्छे से, जिसके साथ मतलब तुमको पता हो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स वगैरह, जो अच्छे से लिख दे। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सब यही थे। और यूनिवर्सिटी कैसे मिली उसका तो ये था कि यार सर्च करी पहले तो बहुत सारी, कि मतलब कौन सी है, कहाँ है, एरिया देख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा सा बैलेंस चाहिए होगा अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ और प्राइवेट लाइफ में। अब अगर तुम कहीं चले गए लिवरपूल जैसी यूनिवर्सिटी में तो सही है, वहाँ पे रहते हैं, बट अगर तुम कहीं आउट इन द वुड्स वाली यूनिवर्सिटी में चले गए, बिल्कुल ही जंगलों में, कहीं नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और एक चीज जो मैं सबको बताता हूँ उधर, ये यहाँ पे भी बताऊंगा कि रैंकिंग मैटर करती है, बट उतनी मैटर नहीं करती जितनी इंडिया में करती है। यहाँ पे अगर अगर बिल्कुल ही टीयर 1 कॉलेज में चले गए, जैसे रसल ग्रुप्स की यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे बहुत सारी, उसमें हो या फिर कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में हो, देन इट मैटर्स। उसके बाहर कोई नहीं देख रहा कहाँ हो, कोई नहीं पूछेगा कि भाई तुम बोurnemouth यूनिवर्सिटी में थे कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में थे, तुम कहाँ थे। दे बी लाइक, क्या तुम्हें आता है स्किल्स, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी लग रही है जो टीम में हमारे हो जाएगी, मतलब assimilate, and if both of those are good for them then you have a job, that's it. सर बॉर्नमथ में काफी फुटबॉल भी बहुत फेमस है एंड यहाँ पे काफी कल्चर रहता है, तो हैव यू एवर गॉन टू अ प्रीमियर लीग मैच, नहीं यार, आई एम नॉट अ या बिग फुटबॉल कॉन्वर्सेशन तो फैन। सुना तो होगा। कन्वर्सेशन तो बंद ही नहीं होते। मैं मेरा नाई भी बैठे बैठे फुटबॉल की बातें कर रहा होता है, मैं बोल देता हूँ भाई कोई टीम बता दे अच्छी जिसका फैन बन जाऊं। बोलते कितना देखते, मैं नहीं देखता, कहते तो मैनचेस्टर सिटी के बन जाओ, जीतती है वो, ठीक है, बन जाते हैं। बट यही मतलब, पहले दिन मैं आया, मेरे साथ एक लड़के से बात हो रही थी इंडिया से ही जो यहाँ पे आया था मेरे साथ, तो वो पहले दिन ही मेरे को ले गया फुटबॉल स्टेडियम, वाइटैलिटी स्टेडियम है यहाँ पे, फुटबॉल के मैच होते हैं वहाँ पे। बॉurnemouth का गेम चल रहा था, टिकट्स नहीं मिले, अनलकीली फॉर हिम लकीली फॉर मी, टिकट्स नहीं मिले, वापस आना पड़ गया। बट यार उसके बाद मैं तो भाई भागता हूँ, क्योंकि फुटबॉल यहाँ पे बहुत क्रेज है। इंडिया में तो है ही, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेज है, लेकिन यहाँ पे लड़ाई वड़ाई करने लग पड़ते हैं फुटबॉल के नाम पे। You will get to hear about it every day. Thank you, sir, for answering all my questions and doubts and motivating perhaps data scientists. Now I'll hand over the mic back to Chanchal, who will be presenting you the audience questions. Thank you, sir. Our audience. If anyone has questions for Mohit sir about his journey, the field of data science, or the experiences of studying abroad, now's the perfect time. So anyone who has question for Mohit sir can raise their hands and start by introducing themselves along with their branch. चंचल, एक्चुअली दो चैट में आ रखे हैं क्वेश्चंस, पहले उसके कर देता हूँ मैं। तो Yes, sir, sure. हाँ, एक तो भूमि पूछ रही है कि सर व्हाई डिड यू प्रेफर टू गो अब्रॉड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द आईआईटीज थ्रू गेट। तो बात ये थी कि गेट का एग्जाम मैंने सिर्फ थर्ड ईयर में दिया था, फोर्थ ईयर में दिया नहीं था। तो उसमें मेरे को बस एनआईटी मिल रही थी, एनआईटी जलंधर।
बट अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ वो उससे थोड़ी बेटर है, और ड्रॉप ईयर्स में कभी लेता नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ बैठते नहीं, मेरे को लगता है एक बार मैं निकल गया तो बेटर है, दूसरी बार में मतलब मेरे को वो कंफर्टेबल नहीं लगता अपने लिए, Yes. तो आई लाइक टू डू इट इन वन गो। तो मैंने बोला यहाँ पे आ गया, तो दैट्स माय रीजनिंग कि मैं एनआईटी आईआईटी में क्यों नहीं गया बीएड के थ्रू। और प्रीतम पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, लाइक यू सेड यू फिगर्ड आउट इन सेकंड ईयर इटसेल्फ that you will go for this domain, how did you do that? मैं भी बहुत कंफ्यूज था यार पहले। फर्स्ट ईयर में मैं आया था, आई रिमेम्बर मेरी क्लास के लोग मतलब दो तीन थे जिनको पता था कि मेरे को यही करना है, मेरे को फुल स्टैक करना है। आई वाज स्केयर्ड कि मेरे को तो पता ही नहीं है। तो मैंने सारे डोमेन एक्सप्लोर करे टू बी ऑनेस्ट। उसमें बूट कैंप्स लगाए मैंने, कोर्सेज लिए फ्रंट एंड के, स्टैक के भी करे। फिर डेटा साइंस करते हुए मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये मुझसे हो भी रहा है, मेरे को इंटरेस्ट भी है, मेरे को समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, सो आई वांट टू गो इन दैट, और ऑब्वियसली पैसा। और एनबीए सर्टिफिकेशन मैटर, एनबीए सर्टिफिकेशन नहीं, नो नॉट रियली। एनबीए सर्टिफिकेशन तो मैटर नहीं करता यार। परमजीत सिंह पूछ रहा है। हाँ, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। Good evening, sir. My name is Kanik Sharma and I am from Electronics and Communication branch. And my question is, how do you maintain a healthy work-life balance while multitasking? And do you ever find time for relaxation and self-care? Thank you, sir. हाँ मतलब एबीएफ में जब मैं था तब तो उतना टाइम नहीं मिलता था, अभी क्योंकि तब मेरे को मैनेज नहीं करना आता था। अभी आके मेरे को जबरदस्ती करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे यू यू टेंड टू गेट ओवरवेल्म्ड समटाइम्स। तो मतलब वही है कि यार एक तो अपना स्केड्यूल डे टू डे बना के रखो पूरा। यूनिवर्सिटी और पार्ट टाइम का तो वो स्केड्यूल उन्होंने दे ही दिया है तुम्हें। यू हैव टू फाइंड कि मतलब इन दो के बीच में टाइम कब मिलेगा। और रिलैक्सेशन के लिए मिल जाता है ऑब्वियसली, बट जैसे अगर तुम खुद से कुक करने वाले हो तो शायद तुम्हें कम मिले, क्योंकि मैं खुद से कुक नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। आधे घंटे से ज्यादा मैं कुकिंग में कभी नहीं लगाता हूँ। जैसे मैंने बताया ही था, आई लाइक इंस्टेंट नूडल्स, मेरा पूरा कवर्ड इंस्टेंट नूडल से भरा पड़ा है। बट वही है, फिर वो लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल अगर हो तो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें टाइम। आई नो पीपल जो 8-8 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हैं, 8-8 घंटे काम भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, मुझसे ज्यादा घूम फिर रहे हैं। एंड आई एम लाइक, समय कैसे मिल रहा है इनको? या तो ये आदमी सो नहीं रहा है, या तो या समझ, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट कर लेते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हें Good और पूछना evening, है तो sir. पूछो गणेश। Good evening, गुड इवनिंग, sir. गुड My इवनिंग। name is Bhumi Bharadwaj. My question is, have you noticed any emerging trends in Python programming that are particularly relevant to data science and AIML branch department? राइजिंग ट्रेंड्स, राइजिंग ट्रेंड्स तो मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है उसमें, तब ध्यान नहीं दिया। अभी यहाँ पे आके तो मैं असाइनमेंट्स में लगा हूँ टू बी ऑनेस्ट। बट यही है कि मैंने एक ही चीज मैंने नोटिस करी है ना, कि आजकल जितनी ज्यादा बेसिक नॉलेज हो जितनी वेरियस फील्ड की, उतना बेटर है। इवन इन डेटा साइंस, आई रिमेम्बर मैं कहीं जॉब के लिए देख रहा था यहाँ पे, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तुम्हें बेसिक साइबर सिक्योरिटी भी आना चाहिए। हम में से बहुत लोगों ने साइबर सिक्योरिटी देखी भी नहीं होगी, एक्सेप्ट फॉर वो जो पढ़ाते हैं CIA, इंटेग्रिटी, ये सब, कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके अलावा मैं देखा भी नहीं होगा। बट यू नीड टू हैव सम बेसिक्स ऑफ दैट, कि अगर बाहर जॉब देख रहे हो स्पेशली, तो जैसे मैंने बोला था पहले, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स बेसिक्स देख लो। AIML और पाइथन के डीप में घुस जाओ, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो उसको। Yes, sir. Alright, any more questions? हाँ रवि। Good evening, sir. My name is Ravi. I am from AMI branch second year. My question to you is that how can I plan for my abroad studies from now onward?
Second year, I'll recommend join any clubs or societies, और नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट HUSC है या फिर लाइट द लिटरेसी है, किसी एक को ज्वाइन कर लो। वॉलंटियरिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर बना के रखो अपना, जैसे मैंने बोला। उसके ऊपर से अपनी इंग्लिश स्किल्स पे काम करना चालू कर दो, कि IELTS इज अ मस्ट टू गो अब्रॉड। IELTS के बगैर नहीं हो पाता। इफ योर IELTS स्कोर इज लो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, या फिर बहुत अच्छी वाली कोई नहीं लेगी, सच्ची बताऊं तो। तो IELTS का अभी तक मैंने बताया नहीं ना। IELTS में होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं एग्जाम के। इसमें होता है एक स्पोकन इंटरव्यू, जो फेस टू फेस होता है, ऑनलाइन होता है, डिपेंडिंग ऑन तुमने कौन सा मोड लिया है। मेरा ऑनलाइन था, तो उसमें इंटरव्यूअर तुमसे बात करता है अच्छा 10-15 मिनट, एंड दे ग्रेड यू ऑन दैट। एक होता है रिटन, एक होता है लिसनिंग वाला। इसमें इंग्लिश बोलते हैं, एक्सेंट में बोलते हैं, वो भी ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। यू विल हैव टू मार्क आंसर्स ऑन दैट। और एक होता है रीडिंग, कि तुम्हें एक, मतलब कोई डायग्राम में चार्ट दे देंगे, या फिर कुछ एक ऐसे लिखने को। यूजुअली दो पार्ट होते हैं रीडिंग में भी। टास्क ए में डायग्राम देते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, वर्ड लिमिट होती है उसमें एक। और एक दूसरा टास्क होता है उसमें, यू हैव टू राइट एन एसे। एंड आई रिमेम्बर राइटिंग में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, राइटिंग और इंटरव्यू। लिसनिंग तो हो जाएगा, चलो ठीक है, रीडिंग भी हो जाएगा। इंटरव्यू में लोग अटक अटक के बोलते हैं, या फिर उनका नर्वस हो जाते हैं बेसिकली, बहुत ज्यादा। अटकना भी नहीं होता, यूजुअली नर्वस हो जाते हैं। आई रिमेम्बर मेरे साथ में जब प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे, मैंने एक हफ्ते के लिए कोचिंग ली थी IELTS की। तो मेरे साथ एक लड़का बैठा था, और वो बहुत नर्वस हो गया, जबकि वो सिर्फ मॉक मॉक इंटरव्यू टाइप था। एंड ही जस्ट फ्रोज कि अब तो गलत बोल दिया, अब तो गए नंबर, बैठ जाओ। तो वो सब नहीं, यू हैव टू लाइक गेट यूज्ड टू इट। अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करो, कोई इंग्लिश नॉवल पढ़ो, इंग्लिश पिक्चर्स देखो, गाने सुनो, गेट यूज्ड टू इट। But there are some questions in the chat box too. चैट बॉक्स में हो रहा है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन HUHC? हर्षित, एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था, सच्ची बताऊं तो। मेरे को थर्ड ईयर में एक बार हुआ था, पता नहीं, कोई तो मेरे साथ में एक और वॉलंटियर था। हमारे व्यूज मैच नहीं हो रहे थे कैंप रन करने में, थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी। वो वन एंड डन केस था, आधे घंटे गुस्सा रहा मैं, ठीक हो गया उसके बाद। बाकी जो 3 साल तक चला है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, बस उन्होंने सर्टिफिकेट में नाम गलत लिख दिया मेरा। अभी तक मेरे को वो दिक्कत दे रहा है, बट चलता है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है किसी चीज का, हमें बस स्किल्स चाहिए। आयुष पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, हाउ टू अप्लाई फॉर एन ऑन साइट इंटर्नशिप? ऑन साइट इंटर्नशिप यार, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए मैं ज्यादा कुछ एडवाइस दे नहीं सकता, कि मैंने कभी अप्लाई करा ही नहीं इंटर्नशिप के लिए। मैंने, बट मेरे दोस्तों ने जितने अप्लाई करा, उन सब ने इंडीड के थ्रू ही करा था। और अगर तुम बड़ी कंपनीज में अप्लाई करने का सोच रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मतलब JP मॉर्गन ले लेगी, JP मॉर्गन में अप्लाई करना चाहिए, या कहीं और, तो अपना ग्रेड्स भी अप रखो टेक्निकल स्किल के साथ, क्योंकि उन पे एक लिमिट होती है मार्क्स की भी। मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, मेरे थर्ड ईयर में गिरे थे CGPA। तो मैं अप्लाई करा JP मॉर्गन के लिए, मेरे को आधे घंटे में आ गया था रिजेक्शन में। इतनी जल्दी कैसे आ गया रिजेक्शन? आई वाज शॉक्ड। मेरे को बोला कि नहीं, एटलीस्ट 7 होनी चाहिए CGPA। तो अपनी CGPA मेंटेन रखो। सर, आफ्टर जॉब एक्सपीरियंस ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मैटर्स? नहीं यार, जॉब एक्सपीरियंस है ना तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर, पढ़ाई कर रहे हो नहीं तो एक्स्ट्रा हो गया जॉब एक्सपीरियंस की। बट है तो लगा दो, बुरा कुछ नहीं है। जॉब एक्सपीरियंस के लगा रखा है रेज्यूमे में, उसके साथ तुमने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कर रखी है कॉलेज में, तो जितना ऐड कर सकते हो उतना बेटर है। बट अगर जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो क्रूशियल है, फिर तो डोंट इग्नोर इट। विच वन इज गुड टू प्रिपेयर, GMAT और GRE? ये तो डिपेंड करता है ना यार, कि मतलब जैसे मैंने यूके के लिए दोनों नहीं दिए, टू बी ऑनेस्ट। और एक मेरा दोस्त उधर है USA में, उसने भी दोनों नहीं दिए, उसने SAT दिया सीधा, उसको सीधा लग गया था। बट यूजुअली GRE चलता है, जितना मेरे को याद है। मेरे साथ वाले बहुत सारे GRE का प्रिपरेशन कर रहे थे। हैंड रेस कर रखा है।
was So great before that, listening to you. Alok Yadav sir highlighted some question also in chat. If you could read above Harshit. आलोक यादव नहीं वो तो हो गया ना. What emerging trends or technologies do you think will have the biggest impact on data science in the next few years? यार इसमें मैं honestly मैं आंसर नहीं कर सकता. Emerging trends अभी generative AI भी आ गया है. बहुत कुछ चेंज हो रहा है. टेक्नोलॉजी बहुत बहुत फास्टली चेंज हो रही है टू बी ऑनेस्ट. तो 5 साल पहले तुम इमेजिन कर सकते थे जो आजकल हो रहा है. मैं नहीं कर सकता टू बी ऑनेस्ट. 5 साल पहले 5G इमेजिन नहीं कर सकता था. 4G आने में इतना टाइम लगा था. अब तो और जितने जीनियसेस आ रहे हैं ना इस फील्ड में और जल्दी-जल्दी बढ़ेगा. तो कोई जो वर्किंग प्रोफेशनल है ना वो इस क्वेश्चन का बेटर आंसर कर सकता है. मैं इसमें मतलब ट्रेंड्स को इतने क्लोजली फॉलो कर नहीं रहा हूँ. वर्किंग प्रोफेशनल ज़्यादा क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे इसको. अभी तो मैं डेटा साइंस की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मेरे रिसर्च पेपर में. डेटा साइंस की हिस्ट्री जाननी हो तो वो पूछ लो. हाँ, किसने हैंड रेज करा हुआ था? Good evening, sir. गुड इवनिंग. It was great listening to you. I am Subham Chaudhary. I am from CCDS branch, and my question is: in your opinion, what are the key factors that contribute to your career advancement in your field? Key factor that contribute to career advancement in my field. यार सबसे तगड़ा फैक्टर तो यही है योर विलिंगनेस टू लर्न, विलिंगनेस टू अडैप्ट. क्योंकि फील्ड चेंज होती रहेगी. अपने से 10 साल 20 साल पहले जो डेटा साइंटिस्ट कर रहे थे हम लोग उससे अलग चीज कर रहे हैं थोड़ी सी. और ये होता रहेगा. मेरे कजन है एक जो 20 ईयर्स से हैं इस फील्ड में. और मैं उनके घर गया. उनके लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ाई की किताबें रखी हैं. उनके मतलब उनके जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी पढ़ाई की किताबें रखी हैं. इनफैक्ट मैं घर पे बैठा हूँ, मेहमान बैठे हैं, तब भी वो मतलब दिन में 3 घंटे 2 घंटे लगा रहे हैं. बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही थी उनको. बट वही है उनकी वो बहुत टाइम से काम कर रहे थे. बहुत ही है. अब जैसे हम फ्रेशर्स हैं हमारे पास थोड़ी लिबर्टी है कि हमें पता है क्या क्या नया है. एक बार जब तुम जॉब करना चालू कर दोगे तो तुम्हें पता नहीं होगा क्या नया है. यू विल हैव टू रीच आउट टू योर पीयर्स. थोड़ा कनेक्शन कहते हैं नेटवर्किंग करनी पड़ेगी. अपने कनेक्शन से पूछना पड़ेगा. कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ेगा. तो वही है. तो यू नीड टू कीप लर्निंग. यू नीड टू कीप अडेप्टिंग. अब जो असेंबली यूज कर रहा था असेंबली के जॉब्स अब कम हो गए हैं. अगर वो अभी भी असेंबली यूज कर रहा होता तो उसके लिए कंपटीशन तगड़ा पड़ा हुआ है मार्केट में. क्या करेगा? हाँ, उस टाइम बात कर रहा हूँ. कोई असेंबली अभी तो हो जाएगा. यही है. और ऊपर से it can get quite boring just sitting in front of a laptop and like. तो रियल वर्ल्ड के साथ टच में रहो यार. हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है. बाकी तो Okay, कुछ sir. नहीं यार. यही है. Okay, sir. Thank you. Any more questions? और किसने भी हैंड रेज करा है? श्रेया. Hi, sir. Good evening. I'm Shreya Parasha from IT branch. First of all, it was great listening to you. So, my question to you is that at times when you're exploring various courses and trainings, be it FSD or data science, so as you spoke about it, that there's this human tendency, which is with me as well, that you do not like to be stuck on one thing. So, how do you deal with that dilemma that if you've chosen one field, at times it gets very overwhelming? So, how do you decide that you've chosen this and it's the perfect decision to have? I'd like to know your stance on that. Thank you. टू बी ऑनेस्ट एक तो मैं डिसाइडिंग फैक्टर रखता हूँ कि यार जैसे मैंने पहले बोला कितना पैसा मिलेगा इस फील्ड में. ऑब्वियसली होना चाहिए सबके लिए. और दूसरा मोस्टली मैं लॉजिक वॉजिक कम लगाता हूँ. मैं देखता हूँ कि इफ आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द फील्ड. अगर मेरे को करने में मजा आ रहा है ना. एक होता है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड इट्स लाइक अ चोर टू यू. जैसे मम्मी बर्तन धुलवाती नहीं जबरदस्ती मन मार के कर रहे हैं वैसा हो रहा है. या फिर फर्स्ट ईयर में जैसे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाई थी वैसा हो रहा है. तो नहीं ना उसमें नहीं मजा आता. मैंने जब फ्रंट एंड सीखी थी. फ्रंट एंड मुझसे हो रहा है मेरे को आ गया है. बट
फ्रंट एंड करने में मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। आई रिमेम्बर 8 घंटे के बूट कैंप के बाद वेबसाइट सब बना दी एंड आई केम आउट फीलिंग रियली मिजरेबल कि यार ये लाइफ नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं चल पाएगा। तो उसके बाद मैंने फिर देखा बैकएंड के लिए भी देखा, जावा ट्राई करी। आई हेट जावा टू बी ऑनेस्ट। कोई जावा फैन है यहाँ पे तो बुरा मत मानना, बट मेरे को करते ही मेरे को रियलाइज होता था कि नहीं यार नहीं हो पाएगा। फिर जब मैंने डेटा साइंस ट्राई करी तो मेरे को लगा कि हाँ ये परफेक्ट अमाउंट ऑफ चैलेंजिंग है, कि मतलब ये मेरे को चैलेंज भी कर रही है और इसमें मैं परफॉर्म भी कर पा रहा हूँ। तो वही देखो कि मतलब कुछ ऐसा जो तुम्हें चैलेंज भी कर रहा हो और जिसमें तुम परफॉर्म भी कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही चैलेंजिंग चीज हो गई और फिर हो ही नहीं रहा। आई रिमेम्बर साइबर सिक्योरिटी मैंने ट्राई करा था, एथिकल हैकिंग ट्राई करा था एक्चुअली, और मैं मुझसे नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं हो पाएगा, छोड़ दो और चीजें करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ ऑल तुम अपना खुद का फ्यूचर है, तुम मनी पहले। Thank you Glad so to much, hear sir, that, for sir. answering. Thank you. Thank you so much, sir, for answering all the questions and clearing the doubts of the audience. All the audience members are requested to fill the feedback form shared with you in the chat box regarding their experience and suggestions. Now, I would like to invite Mr. Kunal Tyagi, sir, founder of Salah, for a vote of thanks and to present certificate to Mr. Mohit Sharma. So yeah, it's really firstly I welcome you on the behalf of Salah community, and it's really a great connect. And I'm not able to connect with the whole session, but yeah, from the last 15 minutes, I hear all the questions, Q&A from the audience, and your way of speaking is just like a feeling of like having a alumni mentor. It's really a see we have an alumnus who is speaking and guiding their juniors in the way. It's not like that we have some industry people who are just sitting and giving some normal tip and tops. Yeah, but it's really a great connect. And yeah, on the behalf of Salah community, it's a certificate of appreciation from our sides, and I request audience to use some emoji to appreciate this, sir. थैंक यू कुणाल सर। वैसे कुणाल सर, Yeah, yes, अभी Mohit. जैसे आपने बोला ना कि आते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल, बहुत ही मोनोटोनस टोन में बात करते हैं। टू बी Right, ऑनेस्ट आई हेट दैट। मेरे को आ जाती है नींद, और फिर अगर नींद आ गई तो फिर समझ नहीं आएगा। तो उससे right. बेटर मेरे को यही लगता है डिस्कशन वाला फॉर्मेट, कि हाँ भाई थोड़ा ऐसा भी ना लगे कि बहुत ही फॉर्मल डिस्कशन है, बहुत बोरिंग हो जाए, बट थोड़ी सी बहुत नॉलेज भी मिलती रहे साथ साथ। Right, right. It's absolutely correct. And the main aspect of such a like main vision and main like we can say the base of this activities on the Salah community is also the same. So I especially asked the team Salah to onboard the Mohit ji for our mentorship program. So such area where like people because in our alumni community there is not any domain where alumni is not here, like it's either higher study or somewhere else other domain. So yeah, it's a collective efforts by the community. So I hope audience also got their queries and got the like great mentor for this domain. Any in future also, if you want anything which Mohit ji help in this scenario, you can directly connect him via our website. So I request team Salah to onboard the Mohit sir on our mentor program. Thank you so much, Kunal sir. Also, it's nice talking to you after so many years. Yeah. Thanks, Mohit. Thanks, everyone. Yeah, teams. Anything else which you want to add? You can. I would like to thank you for giving your precious time and guiding the students through this informative podcast. And a very special thanks to our audience for being consistent throughout the session. And we hope you have gained valuable insights from today's meet and greet session. That's all for this session. For more insights, you can follow Salah, the mentor community on Instagram, and you can check our website. The link is in the chat box. Thank you and stay connected.